90% people who are going to give the UPSC CSE prelims 2024 are going to get eliminated in the first 5 minutes. In this video, I'm going to talk about the ideal way to attempt the prelims, how many rounds should be there, how many questions to attempt, what to do in the first 5 minutes, how to handle CSAT, what should be the exam hall strategy, and what to do in this gap between GS and CSAT. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. Let's imagine that it's 9:30 AM on 16th June. On this day, imagine आपका mental state क्या होगा. You will be excited, you will be scared, you will be worried, and there will be a long task ahead. 2 hours का GS, then 2 hours for CSAT. So you're going to have a long task ahead. It is going to be a difficult day, and you will be excited, scared, worried. In this state, it is very likely that you mess up in the first 5 minutes and get eliminated. What is required on this day? On this day, it is required that you have peak performance. And for peak performance, what is required? That you need to be calm and composed. This is what is needed. Calmness and composure. How will you get this? Let's talk about that. See, the normal scenario is that you will get the paper. आप पहले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे. You will start attempting from question 1 and minute 1. Let's say you don't know questions 1, 2 and 3. You will start to panic. आपको पैनिक होगा, आपको घबराहट होगी कि अरे ये क्या हो गया. A lot of panic is going to set in. Then because of this panic, you are going to conduct silly mistakes. And because of these silly mistakes, even when the cutoff is incredibly low, you are going to be out of the prelim. Silly mistakes आपको बाहर कर देंगी. Then I can guarantee that UPSC is going to throw some or the other bouncer at you this time. It is going to throw some or the other bouncer at you. Last year it was pair based questions. 2022 में it was also pair based questions and some questions on sports. Last year it was also assertion reason based questions. तो कुछ ना कुछ questions इस तरह के आपको इस बार भी मिलेंगे which will be a complete bouncer. So we need something to absorb this shock. तो अब मैं आपको बताता हूँ what is my technique to deal with it. This technique has been recommended by almost all of my students, 50 plus people who have made it to the final list this year. That you need to flip the paper. मैंने दोनों अटेम्प्ट्स में अपना फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर किया है. As you know, I'm selected in this exam and this is one of the major reasons मेरे प्रीलिम्स में आराम से 110 मार्क्स आते हैं. Flipping is the technique you need. अब in the first 2-3 minutes आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है. You don't have to solve any question. You need to flip the paper from the first page to the last page. मैं आपको ये लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा. इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि आप पहले तो शॉक अब्जॉर्ब करो. जो भी यूपीएससी बाउंसर देता है उसका शॉक यू नीड टू अब्जॉर्ब. सेकेंडली, यू नीड टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस कि इस पेपर में पॉलिटी पहले है, फिर ज्योग्राफी है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर एंशिएंट मिडीवल है. ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए. एंड इट नीड्स टू गेट योर माइंड टू अ काम स्टेट. ये कैसे होगा हम बात करेंगे. फर्स्ट 3 मिनट्स में मैं आपको 3 टास्क दे रहा हूँ. फर्स्टली फ्लिप द पेपर, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज. मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा. काम मेंटल स्टेट में आएंगे, शॉक अब्जॉर्ब करेंगे एंड वी विल सी द एंटायर पेपर वंस एंड आइडेंटिफाई द ऑर्डर. देन एज सून एज यू स्टार्ट फ्लिपिंग आई वुड आस्क यू टू स्माइल. अब इसका मतलब ये नहीं है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा आपको स्माइल करने के लिए सो दैट यू लुक गुड या इन्विजिलेटर देख के आपको बहुत खुश हो जाए. आई एम आस्किंग यू टू स्माइल बिकॉज इट इज साइकोलॉजिकली प्रूवन टू मेक यू more calm and composed. It reduces your tension. The moment you start flipping, start smiling. Thirdly, you need to identify the order. You need to see the order in the paper and you need to have a set order of solving. एक order आपके पास खुद से होना चाहिए कि मैं किस order में पेपर को solve करने वाला हूँ. This needs to be pre-decided. This cannot be decided on the exam day. For example, my order looked something like this. I used to do polity first, then economy, then science and tech, then environment, then geography, then history. I used to solve every prelims paper I have solved in this order. You do not have to start from question 1. This will ruin your attempt. You need to start in a particular order. This is the order I followed. आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो. तो पहले 3 मिनट में 3 टास्क हैं, फ्लिपिंग, स्माइलिंग एंड डिसाइडिंग द ऑर्डर. देन हाउ मेनी राउंड्स, कितने राउंड्स में हमें पेपर सॉल्व करना है. मैंने देखा है कई लोग कहते हैं कि 3 राउंड्स में करो, बट माई एडवाइस हेयर इज टू डू इट इन 2 राउंड्स. एंड एक चीज़ याद रखनी है, सेकेंड राउंड इज नॉट गोइंग टू बी डन बाय समबडी एल्स. आपका पड़ोसी नहीं आएगा, दोस्त नहीं आएगा. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ ओनली.
सेकेंड राउंड भी आपको खुद ही करना है। सब कुछ सेकेंड राउंड के लिए मत छोड़ो। नोबडी एल्स इज गोइंग टू हैपन कम, और कुछ नया नहीं हो जाएगा। यू आर द सेम पर्सन विद द सेम नॉलेज। मेरा क्या अप्रोच रहेगा, फर्स्ट राउंड हम करेंगे इन अबाउट 70 मिनट्स। फर्स्ट राउंड में आप मेंटली फ्रेश हो, आपने फ्लिप कर लिया है तो यू आर काम ऑल्सो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करूँगा दैट डू डिसीजन मेकिंग। हर क्वेश्चन को देख के आप 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो आफ्टर रीडिंग इट। ये मुझे आता है 100%, ये मुझे 50-50 आता है कि मुझे 2 ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूजन है, ये मुझे 33% आता है, मुझे 3 ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूजन है, और ये मुझे 0% आता है, मुझे कोई भी ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। अब जो 100% वाले हैं, जो आपको आते हैं 100% आप श्योर हो, यू नो द आंसर, उनका मार्क देम इन दी OMR साइमल्टेनियसली। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जलित से आपने क्वेश्चन देखा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता था, आंसर बी है, दिस इज क्वेश्चन लेट्स से नंबर 25, तो आप उसी टाइम अपनी OMR में मार्क कर दो 25 में बी। बिकॉज अगर आप OMR की मार्किंग लास्ट के 10 मिनट्स के लिए रखोगे तो हो सकता है कि आपका 24 का आंसर 25 में मार्क हो जाए, 25 का आंसर 26 में मार्क हो जाए। इस प्रेशर सिचुएशन को क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। इफ़ यू हैव टेकन द डिसीजन, इफ़ यू नो द आंसर, मार्क इट देन एंड देयर। सेकेंड, जो क्वेश्चंस आपको 0% आते हैं, जो आपको आते नहीं हैं, आपने नहीं पढ़े, यू नीड टू मार्क दिस इन द पेपर। आपको मना करेंगे, पेपर पे लिखा होता है कि उसके अंदर लिखना अलाउड नहीं है। समटाइम्स इन्विजिलेटर ऑल्सो माइट से नो, बट मैंने हर बार लिखा है और लोग लिखते हैं, ठीक है। सो जस्ट फाइंड आउट इफ इट इज़ हैपनिंग इन योर सेंटर, कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर पे आपको मार्क करना है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, और अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। ये जो 50% और 33% वाले हैं, इन सब पे डिसीजन हम सेकेंड राउंड में लेंगे, बट इनको भी हमें मार्क करना है कि ये एक्चुअली 50-50 और 33% वाले हैं, राइट। तो लेट मी गिव यू अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कि हमें करना क्या है। फर्स्ट राउंड में हर क्वेश्चन पे मैं डिसीजन लूंगा। इफ आई नो द क्वेश्चन 100% मुझे आता है तो आई एम गोइंग टू मार्क दी OMR। अगर 50-50 मुझे आता है तो आई एम गोइंग टू राइट इन दी OMR इटसेल्फ कि यार ये 50-50 क्वेश्चन है, बट इस पर डिसीजन सेकेंड राउंड में लिया जाएगा। 33% आता है, 1 ऑप्शन इज एलिमिनेटेड, 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, राइट दिस इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्वेश्चन पेपर पे लिखो, एंड डिसीजन ऑन दीज 2 विल बी टेकन इन द सेकेंड राउंड। एंड अगर नो आइडिया, देखो कोई आइडिया नहीं है, आपको आता ही नहीं है, आप श्योर हो, तो जस्ट पुट अ क्रॉस एंड डोंट लुक एट दैट क्वेश्चन अगेन। Then once your first round is over, you need to take a pause and count the number of circles in your OMR. देखो, आपने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट राउंड। आपने फर्स्ट राउंड के बाद क्या किया है, आपको जो 100% श्योर थे वो आपने OMR में मार्क कर दिए, 50-50 और 33% वाले अभी आपने OMR में मार्क नहीं किए। सो आफ्टर द फर्स्ट राउंड, लेट्स से 70 मिनट्स हैव पास्ड एंड नाउ यू वांट टू टेक अ काउंट इन द OMR। OMR में जो भी आप नंबर काउंट करोगे, let's say this number is 35, so you according to yourself knew 35 questions 100%, आपको पक्का ये पूरी तरह से आते थे 35 questions, तभी आपने 35 गोले भरे हैं OMR में, right? You have only filled these right now. Based on this number you need to decide your future strategy. अभी हमें क्या काम रह गया है, we have to decide on 50-50 and we have to decide on 33% questions, है ना। ये काम हम करेंगे सेकेंड राउंड में, बट इसमें हम कितना रिस्क लेंगे, आर वी गोइंग टू गो फॉर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, आर वी गोइंग टू गो फॉर ओनली 50-50 क्वेश्चंस, आर वी गोइंग टू गो फॉर नन ऑफ दीज क्वेश्चंस, ये डिसाइड होगा आफ्टर यू मेक दिस काउंट इन दी OMR। लेट्स से आपने OMR में काउंट किया कि मैंने तो 40 क्वेश्चंस बबल कर दिए हैं, दिस मीन्स दैट एज पर यू 100% आर श्योर अबाउट द आंसर ऑफ दीज 40 क्वेश्चंस। आई नो ऑल ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू बी राइट, सारे तो सही नहीं होंगे, बट 35 तो सही होंगे। अगर 35 सही हुए तो यू हैव ऑलरेडी गॉटन 67-68 मार्क्स। अब आपको उतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है बचे हुए 60 क्वेश्चंस में। बट लेट्स से ये काउंट 20 है, तब भी सारे सही नहीं होंगे, तो आपके अभी 35 मार्क्स के आसपास बने हैं, तो अब बचे हुए 80 क्वेश्चंस में आपको डेफिनेटली रिस्क लेने की जरूरत है, राइट। इससे ये भी डिसाइड हो जाएगा कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, इसका कोई डिफाइंड नंबर नहीं है, इसका एक डिफाइंड एल्गोरिदम ज़रूर है। अगर आपको 100% क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट करोगे ही 100%, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर 50-50 है, 2 ऑप्शंस के बीच में है, तो भी आपने अटेम्प्ट करना है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, आपने अटेम्प्ट करना ही है। बात सिर्फ इन पे आती है 33% वालों पे, जिनमें आपको पता है कि A, B, C इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, D तो डेफिनेटली नहीं है।
अगर ये 100% का नंबर, ये जो आपको 100% श्योर थे, ये आप फर्स्ट राउंड के बाद काउंट करोगे OMR में, है ना। इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 30, तो यू आर श्योर अबाउट द आंसर ऑफ लेट्स से 32 क्वेश्चंस, तब आप 33% वालों पे नंबर थोड़ा सा रिस्क थोड़ा कम लो। अगर 100% श्योर वाले जो आप काउंट करोगे OMR में आफ्टर द फर्स्ट राउंड, ये नंबर अगर कम है 30 से, देन यू नीड टू इंक्रीज योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हेयर। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हमने डिफाइन कर ली, हमें क्या क्या करना है। मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखाता हूँ कि हाउ आई वुड सॉल्व द पेपर। ये मुझे मिला प्रीलिम्स 2023 का पेपर मेरे हाथ में आया। फर्स्ट काम क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट जॉब? फर्स्ट जॉब इज टू फ्लिप, स्माइल एंड आइडेंटिफाई द ऑर्डर। ये फर्स्ट थिंग है, ये मुझे सबसे पहले करना है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा अच्छा यार इस पेपर में तो यहाँ पर ज्योग्राफी है, और मैं पेपर फ्लिप करने लगूंगा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, मुझे समझ आ गया ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, दिख ही रहा है ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। अब मैंने शॉक ऑब्जॉर्व किया कि अरे यार इस बार तो बहुत सारे पेयर वाले क्वेश्चन हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। पहले 3 मिनट चल रहे हैं, कोई नहीं, आई स्टिल हैव 2 आवर्स विद मी। मैंने देखा अच्छा कोई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, थोड़े बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, ऐसे में पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, फिर मैंने देखा अच्छा ये तो क्वेश्चन चेंज हो गया, ये तो थोड़ी यूरेनियम डिपॉजिट्स के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस आ गए, मर्सूपियल्स आ गया, तो यहाँ पर यार एनवायरनमेंट शुरू हो गया, और मैं पेपर में लिखूंगा ये वर्ड एनवायरनमेंट एज इट इज, आई विल राइट एंड आई एम स्टिल फ्लिपिंग। मैं अभी फ्लिप कर रहा हूँ कि अच्छा यार इनवेजिव एलियन स्पीशीज ग्रुप पूछ रखा है, ये देखो फिर से वो ओनली 1 ओनली 2 पूछ रखा है, ये सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है, ये फिर से ओनली 1 ओनली 2 पूछ रखा है, बट यहाँ सम लिखा है। बस इतना पढ़ूंगा मैं कि अच्छा ये फिर इंडियन स्क्विरल से रिलेटेड पूछ रखा है। इस बार काफ़ी पेयर वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब पेपर टफ है। ये मेरे को पहले 2 मिनट में पता चल चुका है कि पेपर टफ है, इट इज़ ऑलरेडी अ टफ पेपर, आई नो दिस, राइट। मैं यहाँ पढ़ता गया, फिर मैंने यहाँ देखा कि अच्छा ये तो इन्वाइट्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो ये तो डेफिनेटली इकोनॉमी लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इको वर्ड लिख दूंगा, आई विल राइट द वर्ड इको एंड कंटिन्यू टू फ्लिप। चेक कार्बन मार्केट्स, अरे ये नया टाइप का क्वेश्चन, ये तो असर्शन रीजन है, तो इस बार मतलब असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी आए हैं, राइट। स्टेरिलाइजेशन तो मैंने पढ़ा था, मैंने देख लिया अच्छा यार इजी क्वेश्चन है, ये सब भी मैं पढ़ के गया हूँ, स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, ये सब तो आसान होना चाहिए तो मेरे लिए। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड पूछा है, पता नहीं क्या होता है, बहुत सारे पेयर बेस्ड क्वेश्चन है। मेरा शॉक ऑब्जॉर्व कंटिन्यू चल रहा है, एसेट्स के ऊपर चल रहा है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। अब मैंने देखा है अच्छा तो फाइनेंस कमीशन है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, आंसर नहीं करना अभी, जस्ट कीप फ्लिपिंग, करते रहो फ्लिप, देखते रहो क्वेश्चंस को। यहाँ हो गया। अब मैंने देखा है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया, जैसे ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा अच्छा अब यहाँ पे पॉलिटी स्टार्ट हो गया, आई विल राइट द वर्ड पॉलिटी हेयर, ये वर्ड मैं पॉलिटी बड़ा बड़ा यहाँ लिख दूंगा एंड आई विल कंटिन्यू टू फ्लिप। क्या अच्छा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो मैंने पढ़ा हुआ है, प्रिजन रूल्स इस बार न्यूज़ में था, कॉन्स्टिट्यूशन ये तो रिपीटेड क्वेश्चन ही है। अच्छा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूछ ली है तो मेरे को आता है, अभी भी आंसर नहीं देना है, सिर्फ फ्लिप करते रहो, ऐसे मैं फ्लिप करता रहूँगा। ठीक है, अब मैं देखूंगा यार अच्छा बीच में अच्छा एक कम्युनिटी रिजर्व पे क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, आई विल कंटिन्यू। शेड्यूल्ड एरियाज मैंने पढ़ रखा है, ये भी मुझे आता ही होगा, मैंने तो पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। अब मैंने देखा अच्छा बट यहाँ पर एक और समझ आया, फिर से एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो इस बार पेयर के भी क्वेश्चन आए हैं, असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आए हैं। देन आई विल से यार अच्छा ये तो एंशिएंट मेडिवल शुरू हो गया, इफ एंशिएंट मेडिवल हैज स्टार्टेड आई विल राइट द वर्ड्स एंशिएंट मेडिवल हियर, मैं लिखूंगा पेपर में कि एंशिएंट मेडिवल स्टार्ट हो गया है। एंड वंस आई हैव रिटन दीज वर्ड्स इन द पेपर अगेन आई विल कंटिन्यू टू फ्लिप। अच्छा यार वाता किरुताल पूछा है, ये किंगडम से फिर से पेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, फिर से पेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, टूल्स आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल अदर थिंग्स, ये तो आसान क्वेश्चन है मुझे आता है, आई विल स्टिल नॉट आंसर इट। फिर मैंने देखा अच्छा यार मॉडर्न हिस्ट्री पूछ लिया, ये तो ईजी क्वेश्चन है, मैं बस यहाँ पर MH मॉडर्न हिस्ट्री वर्ड लिख दूंगा एंड आई विल कंटिन्यू टू फ्लिप। फिर मैंने देखा कि 2 क्वेश्चन इको के आ गए, तो आई विल राइट हियर इको 2। फिर मैंने देखा अच्छा साइंस एंड टेक आ गया, तो आई विल कंटिन्यू टू फ्लिप कि अच्छा कार्बन फाइबर्स पूछा है, 2020 का रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है, बायोफिल्टर्स पूछ लिया है, सेफेड्स नेबुलाe पूछ लिया है, ये तो शिवन सर ने पढ़ाया था, राइट। ऐसे में देखूंगा अग्नि 5 पूछा है, बैलिस्टिक मिसाइल पूछा है, नेविगेशन सिस्टम ये तो शिवन सर ने याद कराया था, बट अगेन आई विल जस्ट राइट द वर्ड साइंस एंड टेक हियर, आई विल मेक श्योर दैट आई एम नॉट सॉल्विंग एनीथिंग, आई विल जस्ट कीप फ्लिपिंग। मैं देखूंगा अच्छा IR आ गया, तो मैंने IR लिख दिया। अब फिर से थोड़े से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट,
टेम्परेचर इन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, S&P वेव्स। अब मैंने ये पढ़ा हुआ है, मेरे को देख के कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरी पढ़ी हुई चीज़ें आई हैं, एंड ऐसे मैं फ्लिप करता रहूँगा। फिर से 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ गए, 2 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के आ गए, फिर कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ गए, तो मैं ऐसे पूरा पेपर मार्क कर दूंगा। इन 3 मिनट्स आई विल गो थ्रू द एंटायर पेपर टिल द एंड। लास्ट में कहूँगा अच्छा 4 क्वेश्चन IR के हैं, तो मैं IR वर्ड लिख दूंगा यहाँ पे। आई विल गो थ्रू द एंटायर पेपर। अब क्या हुआ, इन द फर्स्ट 3 मिनट्स आई हैव फ्लिप्ड, मेरा शॉक अब्जॉर्ब हो चुका है। मुझे क्या शॉक मिलना था, एक शॉक जैसे यहाँ पर और मिलेगा कि भाई तेरे को कुछ स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। चेस ओलंपियाड पे क्वेश्चन था, राइट, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द चेस ओलंपियाड, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन सम अदर स्पोर्ट्स थिंग्स ऑल्सो। तो मुझे कुछ शॉक्स मिले। क्या शॉक्स मिले, पहले तो भाई कि चेस और स्पोर्ट पे क्वेश्चन आ गया है। फिर एक जैसे यहाँ पर ये है ध्यानचंद अवार्ड वगैरह, है ना, अवार्ड्स पे क्वेश्चन आ गया है। फिर एक शॉक मिला कि पेयर बेस्ड क्वेश्चन है। फिर एक शॉक मिला कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। बट क्या हुआ, 3 मिनट में मैंने ये सारे शॉक्स देख लिए। नाउ आई एम इन अ काम स्टेट। मैंने ये भी तो देखा 3 मिनट में कि मेरी पढ़ी हुई चीज़ें आई हैं, थिंग्स दैट आई हैव रेड हैव कम। मैंने ये भी तो देखा 3 मिनट में कि इजी क्वेश्चंस भी हैं पेपर में, और मुझे ये भरोसा है दैट इफ़ अ क्वेश्चन इज टफ फॉर मी, इट इज़ टफ फॉर एवरीवन। सब वही रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, राइट। इन द फर्स्ट 3 मिनट्स माई शॉक इज अब्सॉर्ब्ड। अब what else has happened in the first 3 minutes? I know the order of the paper. In the first 3 minutes, I am also smiling. So if I am smiling, I am also calm. If the order is known to me, अब मेरे पास एक प्री डिसाइडेड ऑर्डर था, यार सबसे पहले मैं पॉलिटी सॉल्व करता हूँ, फिर मैं इकोनॉमी सॉल्व करता हूँ, फिर मैं साइंस एंड टेक सॉल्व करता हूँ, फिर मैं एनवायरनमेंट सॉल्व करता हूँ। मेरे पास ये ऑर्डर प्री डिसाइडेड था, मुझे पहले से याद था। तो अब अगर मुझे सबसे पहले पॉलिटी सॉल्व करना है, आई विल गो टू पॉलिटी। मैंने जहाँ पर वर्ड पॉलिटी लिखा था मैं वहाँ पर जाऊँगा। मैंने देखा मैंने यहाँ पर पॉलिटी लिखा था, तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 31 मुझे आता है, मुझे पता है इट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, आई नो द आंसर। उसी टाइम OMR में मार्क कर लूँगा मैं। आई विल नॉट वेट, मेरा फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है। आई विल पुट अ 2 टिक ऑन दिस क्वेश्चन लाइक दिस। 31 पे मैं 2 टिक्स लगाऊंगा और मैं OMR में अभी इसे डाल लूँगा। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन 32 मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं एक बड़ा सा क्रॉस मार दूंगा। मेरा फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है, मैं पॉलिटी सॉल्व करना स्टार्ट कर चुका हूँ। पहला क्वेश्चन मुझे आता था, 2 टिक लगाए, OMR में डाल दिया। सेकंड क्वेश्चन आई डोंट नो, आई विल पुट अ बिग क्रॉस लाइक दिस ऑन द वर्ड 32 एंड नाउ आई विल नॉट रीड दिस अगेन। मैंने क्वेश्चन पढ़ा एक बार, आई रेड द क्वेश्चन, मुझे लगा यार मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, हो सकता है मुझे आता हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैंने पूरा पढ़ा, मुझे लगा मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने ऐसे क्रॉस लगा के छोड़ दिया। अब अगर मैंने क्रॉस लगा के छोड़ दिया, मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा। आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट इन द सेकंड राउंड। तीसरा, अच्छा चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मुझे आता है। 2 टिक्स लगाए, मुझे पता है आंसर सी है, OMR में मार्क कर दिया उसी टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे पता नहीं, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही है। इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा एंड आई एम गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन दीज टू, ऑल्दो UPSC हैज ड्रॉप्ड दिस क्वेश्चन, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चन ऑप्शंस के बीच में मुझे कंफ्यूजन हो रही है, A है या B है। तो मैं यहाँ पोस्ट करूँगा, मैं लिखूंगा ऐसे इन द पेपर, आई विल राइट दिस वर्ड 50-50 एंड आई विल सर्कल इट। सेकेंड राउंड में आई विल जस्ट कम टू दिस क्वेश्चन जो सर्कल्ड है। अगर सर्कल्ड है तो सेकेंड राउंड में मैं सिर्फ ये वाले क्वेश्चन पढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आता है, आंसर पता है, मार्क कर दिया, सीधा OMR में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आता है, मार्क कर दिया, OMR में डाल दिया। OMR वर्ड वहाँ पे लिखना नहीं है, OMR में सीधा मार्क कर दिया। यहाँ पर 2 टिक्स लगा देना बस, जस्ट पुट 2 टिक्स हेयर। आपको ये देख के, जस्ट बाय लुकिंग एट व्हाट मार्क यू हैव पुट हेयर, यू नीड टू नो वेदर यू आर गोइंग टू रिविजिट दिस क्वेश्चन और नॉट। फिर ये क्वेश्चन आया, इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। मुझे पता है कि तीनों स्टेटमेंट्स तो गलत नहीं है, तो इट कैन नॉट बी नन, बट आई एम कन्फ्यूज बिटवीन दीज 3। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 33% और आई राइट 1/3। अब ऐसे करके मैं पूरा पेपर करूंगा इन दी ऑर्डर दैट आई डिसाइडेड, पहले पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर साइंस एंड टेक। ऐसे करके मैं पूरा पेपर करूंगा इन 70 मिनट्स। आई विल बी एबल टू डू द फर्स्ट राउंड। अब सेकेंड राउंड में क्या करना है, लेट्स से 70 मिनट्स हैव पास्ड, आपने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया। जब आपने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया तो अब आपने 1 मिनट का पॉज लिया और अपने OMR में देखा। आपके OMR में देवर 40 बबल्स, मतलब आपको लगता है कि 40 क्वेश्चन का आंसर आई एम एग्जैक्टली श्योर ऑफ। अगर 40 बबल्स हैं तो अब सेकेंड राउंड में रिस्क जो है वो कम लेना है ना। 50-50 वाले तो फिर भी करने हैं, जो 33% वाले क्वेश्चन हैं उन पे रिस्क कम लेना है, उन पे रिस्क नहीं लेना। दूसरा सिनेरियो,
मैंने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया 70 मिनट्स में, मैंने OMR देखी, मेरे OMR में सिर्फ 25 बबल्स थे, ठीक है। अब मुझे लगता है 25 से तो बात नहीं बनने वाली, तो आई नीड टू इंक्रीज माई रिस्क एपेटाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो 50-50 वाले तो मैं करूँगा ही, 33% वाले भी मैं अटेम्प्ट करूँगा। ये डिसीजन मेकिंग डायनेमिक है ऑन द बेसिस ऑफ द पेपर। यू कैन नॉट डिसाइड पहले से कि मैं ये करने वाला हूँ और जाके वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। अब लेट्स से मैं सेकंड राउंड में आ गया हूँ एंड मेरे यहाँ पर आई हैव 30 क्वेश्चंस इन माई OMR ऑलरेडी, तो इट मीन्स दैट आई एम गोइंग टू टेक सम अमाउंट ऑफ रिस्क। 30 के ऊपर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ज़्यादा रिस्क लो, ठीक है। अब मैं सेकंड राउंड में आया, सेकंड राउंड अगेन मैं पॉलिटी से स्टार्ट करूँगा, सेम ऑर्डर। मैंने देखा यहाँ पे टिक लगे हैं, मैं देखूंगा ही नहीं, मतलब मैं मार्क कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्रॉस लगा, मतलब मुझे नहीं आता। अगर मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं आता था तो मुझे सेकंड राउंड में भी नहीं आता है। इफ आई डोंट नो इट इन द फर्स्ट राउंड, देयर इज नो वे आई एम गोइंग टू नो इट इन द सेकंड राउंड। तो यहाँ पे क्रॉस लगा, मैं कहूँगा ठीक है यार, इसको तो पढ़ना ही नहीं है। थर्ड देखा, टिक लगे हुए, पढ़ना ही नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन दी OMR। फोर्थ देखा चाहे इस पर सर्कल है, दिस मीन्स दिस इज रिजर्व फॉर द सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड में जो पहला क्वेश्चन है वो ये होगा, and I am going to look at this question and finally take a decision between these two and mark it. And now I'm going to put it in the OMR finally and mark it. इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, जो इनिशियल इंस्टिंक्ट होता है वो जनरली करेक्ट होता है। ये आपने देखा भी होगा MCQs में, जो इनिशियल इंस्टिंक्ट होता है ना, मान लो A और B में मुझे A लग रहा है पहले, फिर सोचने के बाद लग रहा है कि नहीं शायद B भी हो सकता है, तो इनिशियल इंस्टिंक्ट इज जनरली राइट। एटलीस्ट मैं अपने लिए बता रहा हूँ। मेरा सेकेंड राउंड कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने डाल दिया OMR में, 35 ऑलरेडी मार्क था, मैंने देखा ही नहीं। 36 ऑलरेडी मार्क था, मैंने देखा ही नहीं। सेकेंड राउंड में अब 37 पे सर्कल है, मतलब मुझे 37 देखना है। 37 मैंने देखना है, तो मैं कहूँगा अच्छा यार 1 2 3 इनमें 1/3 का कन्फ्यूजन है। अब मैं देखूंगा कि कैन आई टेक द रिस्क। ये रिस्क इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि मेरे को कितना चांस है सही करने का, और ये डिपेंड करेगा कि मेरी OMR में बबल्स कितने थे। अगर OMR में ऑलरेडी 40 क्वेश्चन टिक थे तो मैं कहूँगा ठीक है यार, मुझे रिस्क लेना ही नहीं है और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाऊंगा। ऐसे मैं अपना सेकंड राउंड करूंगा इन द सेम ऑर्डर, पहले पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर साइंस एंड टेक, फिर एनवायरनमेंट, सेम ऑर्डर में मैं करूंगा और ऐसे पूरा पेपर फिर से सॉल्व कर लूंगा, सिर्फ वो क्वेश्चंस जो मैंने सर्कल किए, ठीक है। दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट द GS पेपर। एक रिकैप दे देता हूँ, काफ़ी बातें हो गई। फर्स्ट 3 मिनट्स में आई विल फ्लिप, आई विल अब्जॉर्ब द शॉक बाय स्माइलिंग एंड आई विल आइडेंटिफाई द ऑर्डर, और मेरा जो प्री डिटरमाइंड ऑर्डर है मैं उसे मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट माई फर्स्ट राउंड, आई विल स्टार्ट डिसीजन मेकिंग। ये जो डिसीजन मेकिंग है ये 4 तरह की हो सकती है। 100% इफ आई एम श्योर आई विल मार्क इन दी OMR, 50% 33% आई विल मार्क इन द पेपर विद अ सर्कल, 0% है आई विल पुट अ क्रॉस। सेकेंड राउंड पे आई विल डू द डिसीजन मेकिंग ऑन 50-50 एंड 33% क्वेश्चन। ओरिजिनल थॉट जैसे मैंने आपको कहा था यूजुअली करेक्ट है, और इसमें मैं रिस्क कितना लूंगा सेकंड राउंड में, डिपेंडिंग ऑन जो मैं फर्स्ट राउंड के बाद OMR में काउंटिंग कर रहा हूँ उसके बेसिस पे रिस्क लूंगा कि ये क्वेश्चंस कितने हैं। प्रीलिम्स इज नॉट ओवर येट, अभी खत्म नहीं हुआ हमारा प्रीलिम्स, अभी हमारा सिर्फ GS खत्म हुआ है। अब ये 9:30 to 11:30 का टाइम खत्म हो गया, 3 घंटे का गैप है। इस 3 घंटे में अगर आपको कुछ नहीं समझना इस वीडियो से, बस एक बात समझ लो, प्लीज़ डू नॉट टैली द क्वेश्चंस एंड प्लीज़ डू नॉट डिस्कस द पेपर। भगवान के लिए इस टाइम पर डू नॉट टैली द क्वेश्चंस, डू नॉट डिस्कस द पेपर। आपको एक बहुत और बड़ी मेजर बैटल फाइट करनी है। वो मेजर बैटल क्या है? वो मेजर बैटल CSAT है। तो फर्स्टली यू नीड टू स्लीप इन दिस टाइम, इफ़ यू पॉसिबली कैन आप सो जाओ बिकॉज योर माइंड नीड्स रेस्ट। सेकेंड, यू नीड टू रिवाइज सम मैथ्स फॉर्मूले। आप एक शीट बना लो जिस पे आप कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जैसे कि डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, इस टाइप की चीज़ें लिखोगे और उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। PNC के फॉर्मूले इस पे लिख लिए। एंड लास्टली यू नीड टू ईट, बट ईट अ लाइट लंच ताकि आपको नींद ना आए, पेपर में नींद ना आए, जो नींद आए वो यहाँ पर निकल जाए। तो योर माइंड नीड्स रेस्ट, यू नीड टू रिवाइज मैथ्स फॉर्मूले एंड यू नीड टू ईट, योर बॉडी नीड्स फ्यूल। ये काम है इस 3 घंटे में। डू नॉट टैली द क्वेश्चंस, डू नॉट डिस्कस द पेपर, नो मैटर व्हाट हैपेंस। अब बात करते हैं CSAT की। CSAT में आई एम नॉट गुड पर्सनली, तभी मैं खुद CSAT के मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ाता नहीं हूँ। मेरे CSAT में 85-86 मार्क्स आते थे, और जिस चीज़ में मेरे खुद ही इतने मार्क्स आते हैं मुझे नहीं लगता मुझे वो पढ़ाना चाहिए। दी ओनली थिंग दैट आई वॉज गुड एट वॉज कॉम्प्रिहेंशंस, और उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं CSAT कैसे क्लियर किया मैंने हर बार, आई हैड अ पैटर्न कॉल्ड फाइंड द ईजी क्वेश्चन। ये एडवाइस मैंने दी है सबको कि पहले 10 मिनट में CSAT के यू नीड टू फाइंड द ईजी क्वेश्चन। एंड ये ऑल इंडिया रैंक 59 के
टेलीग्राम चैनल का एक स्क्रीनशॉट है वेयर ही हैज डन द सेम थिंग फॉर CSAT. ही हैज डन द एग्जैक्ट सेम थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड देर आर many people like this, राइट? तो CSAT को अटेम्प्ट करने के लिए सिंपल रूल है, फाइंड द इजी क्वेश्चन इन द फर्स्ट 10 मिनट्स. इसका क्या मतलब है? CSAT को एक बार री एग्जामिन करते हैं. देर आर 80 क्वेश्चन ऑफ 2.5 मार्क्स, ठीक है? इफ यू कैन गेट 27 क्वेश्चन नेट करेक्ट, मतलब नेगेटिव हटा के, लेट्स से आप 27 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो एंड ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, नेगेटिव हटा लेते हैं, तो यू आर गोइंग टू हैव 67.5 मार्क्स, ठीक है? अब हम बात करते हैं हमें अल्टीमेटली क्या करना है. 2 घंटे में 27 नेट करेक्ट करने हैं. दिस इज आवर टारगेट. ये तो टारगेट है ही नहीं, टारगेट ये है ना? तो अब हमें 2 घंटे में 27 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं. मान लो मैं 10 मिनट लगाकर, पहले 10 मिनट लगाकर 45 इजी क्वेश्चन फाइंड कर लेता हूँ. इजी क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या है? इजी क्वेश्चन ये नहीं कि देखते ही सॉल्व हो जाए, दैट इट्स वेरी इजी टू सॉल्व, यू कैन जस्ट लुक एट इट एंड सॉल्व इट. दैट डज नॉट मीन इट्स एन इजी क्वेश्चन. Easy question means that I can solve it in 2 minutes. If in the first 10 minutes I can find 45 easy questions, then what is going to happen? If I have 45 easy questions that I know I can do in 2 minutes, I will spend the next 90 minutes solving these 45 questions. अगले 90 मिनट मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा. जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो मान लो मेरी 75% एक्यूरेसी भी आती है, तो भी आई विल हैव 34 करेक्ट, 11 रॉन्ग एंड आई विल क्वालिफाई. मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा इसमें, राइट? तो द गेम इज सिंपल. CSAT में पहले 10 मिनट में यू नीड टू फाइंड 45 क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व इन 2 मिनट्स. मैं ये भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट 90 मिनट्स यू नीड टू सॉल्व. अब 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं. इट कैन बी लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. 5 से 6 क्वेश्चन मैं एक टाइप के करूंगा. लेट्स से आई डिड 5 to 6 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, देन आई वुड स्विच, देन आई वुड डू सम मैथ्स क्वेश्चंस, देन अगेन आई वुड स्विच. 90 मिनट्स में आई एम गोइंग टू डू दीज 45 क्वेश्चंस दैट आई थॉट आई कैन सॉल्व इन 2 मिनट्स. यहाँ पर कोई ईगो नहीं लेके आनी है, कोई फालतू का ये नहीं कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है तो मुझे ये करना ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? नो ईगो, नो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, just find things that you can do in 2 minutes, right? Then solve them in the next 90 minutes and साथ में ही mark them. You solve them and you mark them in the OMR then and there. In the last 20 minutes you can try some other questions or you can keep reserve time for this. Let me show you a live demonstration. मान लो मुझे CSAT का पेपर मिला. Generally I am good at comprehension, मुझे लगता है comprehension में कर लेता हूँ. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा. अब यहाँ पर CSAT में जो फ्लिप करने का टाइम है ये 10 मिनट्स है और क्वेश्चंस भी 80 ही हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो डिटेल में, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, और इवन बेटर माय टेक्निक फॉर सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन इज पैसेज मत पढ़ो, रीड द ऑप्शंस. कई बार सिर्फ ऑप्शन पढ़ के भी पता चल जाता है. यू रीड दिस क्वेश्चन, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड फॉर इक्विटेबल एक्शन ऑफ वाटर. मैंने चारों ऑप्शन पढ़े, पॉलिसी बनाए, रिवर सिस्टम्स, वाटर चैनल्स, मिटिगेट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस. ये 4 ऑप्शन मैंने पढ़े. मुझे लगता है ये हो सकता है. I will just put a tick over it, either a circle or a tick. ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है. अगेन सेकंड क्वेश्चन, जस्ट लुक एट द पैसेज. पैसेज है, वैसे भी एक क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा पैसेज भी नहीं है, सॉल्वेबल लगता है, पुट अ टिक. थर्ड, पैसेज है, सॉल्वेबल लगता है, पुट अ टिक. फोर्थ, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा. राज हैज 10 pairs of red, 9 pairs of white, 8 pairs of black shoes, randomly picks 1 by 1 to get a red pair of red shoes to wear. What is the maximum number of attempts he has to make? मुझे लगा मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैंने इस पर टिक लगा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा, PNC का क्वेश्चन है, मैंने ये नहीं पढ़ा, मुझे नहीं आता, मुझे पढ़ के लग रहा है मैं इसे 2 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैं सीधा इसको क्रॉस कर दूंगा. आई विल जस्ट क्रॉस इट एंड नॉट लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन. सिमिलरली आई लुक एट दिस क्वेश्चन, आई थिंक दैट इन द 2 minutes आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, so I will just put a cross on it. Then I come to this question, I know remainder theorem, मैं कर लूँगा, I'm not solving it, I'm just putting a tick on it that I'm going to do it later. फिर ये मैंने देखा यार, अच्छा ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, मैं पढ़ के गया था कि 2 की एक्सपेंशन कैसे करनी होती है, इसमें साइक्लिकल एक्सपेंशन होता है, तो मुझे ये क्वेश्चन आता है, मैं टिक लगा लेता हूँ. फिर मैंने ये क्वेश्चन देखा, मुझे लगा यार नहीं ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा 2 मिनट में, पुट अ क्रॉस. ऐसे करके फर्स्ट 10 मिनट्स में योर गोल इज कि 45 क्वेश्चन ऐसे हों जिन पे एक टिक लगाओ.
नेक्स्ट 90 मिनट्स में आप उनको ट्राई करना है और वहाँ पर भी 75% एक्यूरेसी से काम चल जाएगा। उसके बाद भी 20 मिनट्स बचेंगे टू ट्राई सम अदर क्वेश्चंस। यहाँ पर अगर आप 2 या 3 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपको बहुत बफर भी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ सी सेट। अब सी सेट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताता हूँ। फर्स्टली, कोई ईगो नहीं। मैंने पीएनसी पढ़ा था 4 दिन, पीएनसी का ही पहला क्वेश्चन है सी सेट का, मुझे लग रहा है नहीं ऐसे कैसे, मैं तो करके ही मानूंगा, ये नहीं करना। फोकस ऑन फाइंडिंग द इजी क्वेश्चंस, जस्ट 45 क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व इन 2 मिनट्स, ये रोल है और कुछ नहीं है। देन स्विचिंग इज अ प्रिंसिपल। मैं क्या करता था, 5 क्वेश्चंस ऑफ मैथ, मेरा दिमाग थक जाता था मैथ करके। आई एम नॉट लाइक, मैथ्स मुझे पसंद नहीं है, आई एम नॉट बैड एट इट बट मुझे पसंद नहीं है। 5 क्वेश्चंस ऑफ मैथ, देन आई यूज्ड टू डू 5 क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आई वाज वेरी गुड। तो इसमें आई विल जस्ट पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम है आप वहाँ से देख सकते हो। देन आई वुड कम बैक टू 5 क्वेश्चंस ऑफ मैथ, देन बैक टू 5 क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। ऐसे करके मैं साइक्लिकल सॉल्व करता था। कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में ब्रेन का डिफरेंट पार्ट यूज होता है, मैथ सॉल्व करने में ब्रेन का डिफरेंट पार्ट यूज होता है, so you can give your brain some rest. अब we have reached the end of the video, but what next for you? आज के बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज दोगे, एनी टेस्ट सीरीज दैट यू गिव, आप पहले तो जीएस और सीसैट का पेपर साथ में करोगे, यू विल नॉट डू देम सेपरेटली। सेकंड, इन एनी टेस्ट सीरीज पेपर, आई थिंक 3 या 4 पेपर आप अभी दोगे प्रीलिम्स से पहले, यू नीड टू डू फ्लिपिंग, यू नीड टू डू ऑर्डर आइडेंटिफिकेशन, यू नीड टू स्माइल। ये जो 3 चीज़ें हैं फर्स्ट 3 मिनट्स के लिए, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस। आपको अपना ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस भी फाइनलाइज करना है और ये 2 राउंड्स में कोई पेपर सॉल्व करना है, इसको भी प्रैक्टिस करो। ये जो ओरिजिनल में डिसीजन मेकिंग है, 100% को OMR में मार्क करना है, वट एवर प्रिंसिपल्स आई हैव टोल्ड यू, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस इन वट एवर टेस्ट सीरीज यू गिव फ्रॉम टुडे till the last day. 3 to 4 papers you will give, you need to give them by this method. Secondly, you need to eliminate self-doubt. So if you have reached till here, if you have figured out the technique, write in the comments that I will clear prelims 2024. These affirmations will activate your subconscious mind and they are very important to ensure that you are at least believing in yourself. All the best. Here with you till the end. See you next time.